یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ بھارت نے امریکہ میں کواد رہنماؤں کی کانفرنس میں عالمی ترقی، امن اور سلامتی کے لیے اپنے نظریے کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سب کی شمولیت والے اور خوشحال بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں کواد کے عزم کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم مودی آج رات دیر گئے جدید ترین ٹیکنالوجی کے میدان میں اشتراک کو فروغ دینے کے لیے بڑی امریکی کمپنیوں کے سی ای او سے ملاقات کریں گے۔ نیشنل پیپلز پاور کے رہنما انورا کمارا دسانایکے نے سری لنکا کے صدارتی انتخاب میں جیت حاصل کی ہے۔ ایران کے صوبے خراسان میں کوئلے کی کان میں ایک گیس دھماکے میں کم سے کم 51 افراد ہلاک ہو گئے، اور بھارت نے ہنگری میں شطرنج اولمپیاڈ میں سونے کے 2 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے امریکہ کے شہر ڈیلاویئر میں کواد رہنماؤں کی کانفرنس میں عالمی ترقی، امن اور سلامتی سے متعلق اپنے نظریے کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک آزاد، کھلے اور سب کی شمولیت والے نیز خوشحال بھارت بحر الکاہل کے تئیں کواد کے اپنے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس گروپ سے صحت، ٹیکنالوجی اور آب و ہوا کی تبدیلی کے میدان میں اقدامات کو آگے بڑھاتے ہوئے ضابطوں پر مبنی ایک بین الاقوامی نظم اور امن و استحکام کو مدد ملتی ہے۔ ہماری بیٹھک ایسے سمے ہو رہی ہے جب وشو تناؤ اور سنگرشوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایسے میں ساجھا ڈیموکریٹک ویلیوز کے آدھار پر کواد کا مل کر ساتھ چلنا پوری مانوتا کے لیے بہت ہی مہتوپورن ہے۔ ہم سبھی ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر، سمپربھوتا اور کھیتری اکھنڈتا کے سمان اور سبھی مسئلوں کے شانتی پورن ڈھنگ سے حل نکالنے کا سمرتھن کرتے ہیں۔ نیو یارک سے وزیر اعظم کے اس دورے کی خبریں دینے والی ہماری نامہ نگار ہیمانی رانا نے بتایا۔ امریکہ میں پردھان منتری نریندر مودی نے امریکی راشٹرپتی، جاپان کے پردھان منتری اور آسٹریلیائی پردھان منتری کے ساتھ چھٹی کواد شیخر سمیلن کا سفلتا پوروک سماپن کیا ہے۔ پردھان منتری مودی کے شبدوں میں ساجھا لوکتانترک لوکاچار کے ساتھ کواد بھاگیداروں کا ایک ساتھ آنا مانوتا کے لیے مہتوپورن ہے۔ ایک سوتنتر، کھلا، سماویشی اور سمردھ ہند پرشانت کواد بھاگیداروں کا ایک ساجھا ادیشیہ رہا ہے۔ پردھان منتری مودی نے کہا کہ کواد از ہیئر ٹو اسٹے، ٹو اسسٹ، ٹو پارٹنر اینڈ ٹو کمپلیمنٹ۔ یاترا کے دوران کی گئی پرمکھ گھوشناؤں میں شامل ہے کواد کینسر مون شاٹ، میری ٹائم انیشیٹو فار ٹریننگ ان دا انڈو پیسفک، میک-3، 2025 میں کواد ایٹ سی شپ آبزرور مشن، کواد پورٹس آف دا فیوچر پارٹنرشپ۔ بھارت دوارا کی گئی پرمکھ گھوشناؤں میں شامل ہے ماریشس کے لیے ایک انترکش آدھارت ویب پورٹل کی استھاپنا اور ہند پرشانت چھیتر کے چھاتروں کے لیے ایک نئی کواد اسٹیم فیلوشپ۔ کواد ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے نیتاؤں نے کواد ویلمنگٹن گھوشنا کو بھی اپنایا ہے۔ نیو یارک سے آکاشوانی سماچار کے لیے ہیمانی رانا۔ وزیر اعظم کے دورے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے اعلان کیا کہ بھارت 2025 میں کواد رہنماؤں کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ کے دورے کے پہلے دن وہ ڈیلاویئر میں اعلیٰ سطح کی دوطرفہ ملاقاتوں اور کواد رہنماؤں کی کانفرنس میں زبردست مصروف رہے۔ ہمارے نامہ نگار بھوپیندر کی ایک رپورٹ۔ نئی دلی سے 15.5 گھنٹے کی اڑان کے بعد فلاڈیلفیا پہنچنے پر پردھان منتری مودی کا ہوائی اڈے اور ان کے ہوٹل میں بھارتی پرواسیوں نے گرمجوشی سے سواگت کیا۔ پہنچنے کے ترنت بعد پردھان منتری مودی نے امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ یہ بات چیت جو بائیڈن کے ویلمنگٹن استھت گھر میں ہوئی۔ دونوں نیتاؤں کے بیچ قریب 1 گھنٹے تک چلی ملاقات کے دوران کافی گرمجوشی دیکھی گئی۔ بیٹھک کے دوران شری مودی نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت اور امریکہ آج ایک ویاپک ویشوک رਣنیتک ساجھیداری نبھا رہے ہیں۔ دونوں نیتاؤں نے دوپکشی سہیوگ کو اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی چرچا کی۔ ساتھ ہی ہند پرشانت سہت ویشوک اور چھیتری مدوں پر بھی وچاروں کا آدان پردان کیا۔ بھارت اور امریکہ کے بیچ دوپکشی سمبندوں کو اور گہرا کرنے کے پریاس کے طور پر امریکہ نے بھارت سے چرائی اور تسکری کر لائی گئی 297 کلاکرتیوں کو لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ دن کا مکھیہ کارکرم کواد لیڈر سمٹ ارچمیر اکیڈمی میں آیوجت کیا گیا، جو راشٹرپتی بائیڈن کا ودیالیہ تھا۔ اس شکر سمیلن کے دوران پردھان منتری مودی نے ہند پرشانت چھیتر میں وکاس اور آپسی سہیوگ کو بڑھاوا دینے کے لیے بھارت کے سہیوگاتمک درشٹیکون پر زور دیا۔ اپنے بھاشن میں پردھان منتری مودی نے کہا کہ اس سمے دنیا تناؤ اور سنگھرش سے جوجھ رہی ہے اور ایسی وشم پرستھتیوں میں ساجھا لوکتانترک وچاروں اور مولیوں کے ساتھ کواد میں بھاگیدار دیشوں کا
एक साथ एक मंच पर आना मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्वाड को क्विक यूनिफाइड असिस्टेंस डिलीवरी कहा। उन्होंने कहा कि क्वाड एक ऐसी साझेदारी है जो मानवता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लंबे समय तक बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा का पहला दिन राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित रात्रि भोज के साथ समाप्त हुआ। वजीर आजम मोदी आज रात देर गए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तिराक को फरोग देने के मकसद से बड़ी अमरीकी कंपनियों के सीईओज के साथ मुलाकात करेंगे। वो न्यूयॉर्क में भारतीय वक्त के मुताबिक आधी रात के बाद भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। कल जनाब मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में एक बेहतर कल के लिए कसीर मुल्की तरीक़ेकार पर तवज्जो दी जाएगी। भारत ने अमरीका में डेलावेयर के मकाम पर माहौलियात के साजगार और मुनसिफाना मईशत से मुताल्लिक समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जो अपनी नौइयत के पहले मुआहदे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में खुशहाली के लिए भारत बहरुल काहिल इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तहत इस समझौतों का तबादला किया गया। जनाब मोदी क्वाड सरबराह मीटिंग के लिए अमरीका के 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। साफ सुथरी मईशत से मुताल्लिक इन मुआहदों का मकसद तकनीकी ताउन, इफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़, सलाहियत साजी और तहक़ीक़ात से मुताल्लिक इश्तिराक में इजाफा करना है। हरियाणा में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा वोटरों को राग़िब करने के लिए रैलियां कर रहे हैं। जेजेपी लीडर और डबवाली के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने आज सिरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रियासत इस बार एक मुअल्लक़ असेंबली की तरफ बढ़ रही है। अलबत्ता उन्होंने वाज़ेह किया कि वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। हरियाणा के साबिक़ वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज सिरसा के चौटाला गांव में एक मीटिंग से खिताब की, जहां उन्होंने डबवाली हलके के कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहाग की हिमायत में मुहिम चलाई। कुमारी शैलजा की बीजेपी में शामिल होने की क़यासाराइयों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी की एक सीनियर और जिम्मेदार लीडर हैं। इसी दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर मनोहर लाल ने जगाधरी में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की। अपने खिताब में साबिक़ वजीर आला ने कहा कि हरियाणा की तारीख बताती है कि मरकज में जिस पार्टी की सरकार होती है वही पार्टी रियासत में सरकार बनाती है। हरियाणा में आला इंतखाबी अफसर पंकज अग्रवाल ने कहा है कि मिसाली ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ शिकायतों को सी विजिल ऐप पर 100 मिनट के अंदर अंदर दूर किया जा रहा है। इस ऐप के जरिए लोग शवाहिद के तौर पर ऑडियो, वीडियो और फोटोज अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि शहरियों की बेदारी की वजह से हरियाणा में 16 अगस्त से आज 22 सितंबर तक कुल 12,011 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 11,122 शिकायत जायज पाई गईं और ज़ाब्तों के मुताबिक इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई भी अंजाम दे दी गई है। हरियाणा के आला इंतखाबी अफसर ने बताया कि कोई भी फर्द या सियासी पार्टी इस ऐप पर मिसाली ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक कोई शिकायत दर्ज करा सकती है। ये शिकायत इस ऐप पर इंतखाबी अमल के दौरान किसी भी वक्त दर्ज कराई जा सकती है। इंतखाबी अफसरान सी विजिल ऐप के जरिए इंतखाबी सरगर्मियों पर करीबी नजर रख रहे हैं और जहां कहीं मिसाली ज़ाब्ता अमल की खिलाफ वर्जी पाई जाती है वहां इसकी रोकथाम की कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार ने उन तलबा की 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम रिफंड की है जिन्होंने मुल्क भर के मुख्तलिफ कोचिंग इदारों में यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, आईआईटी और दीगर दाखिला जाती इम्तिहानात के लिए अपना इंदराज कराया था। सारिफीन के उमूर के महकमे ने आज कहा है कि 656 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कौमी सारिफीन हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज कराकर कोचिंग मराकिज और प्राइवेट इदारों से रिफंड का दावा किया था। सारिफीन के उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा कि सरकार सारिफीन और खास तौर पर उन तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है जिन्होंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कीमती वक्त और वसाइल लगाए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस कदम से सरकार के इस अहद की एक बार फिर यकीन दहानी होती है कि कोचिंग इदारे मुनसिफाना सलूक और सारिफीन के हुकूक का एहतराम करें। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि महकमे के मुदाखलत के बाद ये रिफंड मुल्क भर के मुतासिरा तलबा को फौरी तौर पर वापस कर दिए गए हैं। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। ये दफ्तर भारत में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद खित्ते की कंपनियों के लिए खुसूसी राब्ता मरकज का काम करेगा, जिससे मुख्तलिफ शोबों में इश्तिराक को फरोग हासिल होगा।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने सिंगापुर के अपने दौरे में यह दफ्तर कायम करने का ऐलान किया था। सिंगापुर में यह दफ्तर इन्वेस्ट इंडिया का पहला बैरून मुल्क दफ्तर है। जनाब गोयल ने इस मौके पर जोर देते हुए कहा कि यह दफ्तर सिंगापुर और वसीतर आसियान खित्ते के साथ इक्तिसादी ताआवुन को मुस्तहकम बनाने की हमारी कोशिशों में एक नया बाब है। दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ कल नई दिल्ली में नेशनल कैडेट्स कोर एनसीसी के मुश्तरका रियासती नुमाइंदों और डिप्टी डायरेक्टर्स जनरल की कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान तबादले ख्याल में अहम तवज्जो हाल ही में मंजूर किए गए तौसीई मंसूबे के निफाज पर होगी, जिसका मकसद एनसीसी कैडेट्स की कुव्वत को 3 लाख तक बढ़ाना और इसे 17 लाख से 20 लाख करना है। कॉन्फ्रेंस में शरीक वफूद ट्रेनिंग और कैंपिंग के नए बुनियादी ढांचे कायम करने की गरज से पॉलिसियों को बेहतर करने, माली जरूरतों को पूरा करने और मुतल्लिका तरफैन के दरमियान तालमेल को बढ़ाने पर तबादले ख्याल करेंगे। बिहार में गंगा और दूसरी नदियों में पानी की सतह में अचानक इजाफे की वजह से सैलाब से तकरीबन 13 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। पटना, बेगूसराय, वैशाली, खगड़िया, सारण, मुंगेर और भागलपुर समेत 12 अजला सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हैं। बिहार की पड़ोसी रियासतों में गंगा के नशेबी इलाकों में तेज बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में सैलाब आ गया है। मशरकी रेलवे ने मुसाफिरों के तहफ्फुज़ के पेश नजर 8 रेलगाड़ियों को मनसूख कर दिया है, जबकि 20 से ज्यादा रेलगाड़ियों का रास्ता तब्दील कर दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय बहरिया कल से गोवा के बहरी जंगी कॉलेज में गोवा के समंदर से मुताल्लिक 5वें सिंपोजियम की मेजबानी करेगी। वजारत दिफा ने बताया कि गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का मकसद भारत और बहरे हिंद खित्ते के अहम मुल्कों के दरमियान इश्तिराक से मुताल्लिक सोच, ताउन और बाहमी मुफाहमत को फरोग देना है। श्रीलंका में नेशनल पीपल्स पावर के लीडर अनुरा कुमार दिस्सानायके सदारती इंतखाब जीत गए हैं। उन्होंने दूसरे मरहले की गिनती के बाद अपोजिशन पार्टी समागी जनबाल वैज्ञा के लीडर सजित प्रेमदासा को हरा दिया है। चुनाव कमीशन ने मजीद कहा है कि मौजूदा सदर रानिल विक्रमसिंघे चुनाव हार गए हैं। वोटों की गिनती दूसरे मरहले में उस वक्त पहुंच गई जब पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार मतलूबा 50% वोट हासिल करने में नाकाम रहा। सदारती इंतखाबात के लिए कल वोटिंग हुई थी, जिसे इंतखाबी कमीशन ने मुल्क की तारीख में सबसे पुरअमन इंतखाब करार दिया है। मशरकी ईरान के जनूबी खुरासान सूबे में कोयले की एक कान में गैस धमाके में कम से कम 51 अफराद हलाक हो गए। ज़राए इब्लाग की इत्तला के मुताबिक कल रात 9 बजे तबस के मदनजू कान में मीथेन गैस के रिसाव की वजह से यह धमाका हुआ। धमाके के वक्त कान के 2 हिस्सों में 69 मजदूर काम कर रहे थे। 20 से ज्यादा मजदूर जख्मी हुए हैं और ये वाज़ेह नहीं है कि कितने अफराद इसमें फंसे हुए हैं। अमेरिका में अलाबामा के शहर बर्मिंघम में अफसोसनाक इज्तिमाई फायरिंग के एक वाक़े में 4 अफराद के हलाक और दर्जनों के जख्मी होने की खबर है। मकामी पुलिस हुक्काम ने कहा है कि यह वाक़या कल आधी रात के करीब पेश आया और 4 अफराद जाए हादसा पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 8 अफराद का मकामी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस को शुबा है कि फायरिंग के इस वाक़े में 1 से ज्यादा अफराद के मुलव्विस हैं, जिसकी तफ्तीश जारी है। भारत ने हंगरी के शहर बुडापेस्ट में जारी शतरंज ओलंपियाड में सोने के 2 तमगे हासिल करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। मर्दों और खवातीन की दोनों टीमों ने सोने का तमगा हासिल किया है। ओपन सेक्शन में भारत ने यह खिताब उस वक्त हासिल किया जब मुकाबले के आखिरी मरहले अर्जुन इलियागासी ने स्लोवेनिया के जन सुबेलजी को शिकस्त दी। ठीक उसी वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद चीन ने अपने मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ अपना अहम पॉइंट गंवा दिया और इस तरह भारत ने खिताब जीत लिया। ओपन जुमरे के लिए भारतीय टीम में गुकेश डी, प्रज्ञानंद, अर्जुन इरिगाइसी, विदित गुजराती, पेंताला हरिकृष्ण और श्रीनाथ नारायण शामिल हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अमेरिका में क्वाड रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में आलमी तरक्की, अमन और सलामती के लिए अपने नजरिए का इजहार किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबकी शमूलियत वाले और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते के तईं क्वाड के अज़्म को उजागर किया। वजीर-ए-आज़म मोदी आज रात देर गए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मैदान में इश्तिराक को फरोग देने के लिए बड़ी अमरीकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। नेशनल पीपल्स पावर के रहनुमा अनुरा कुमार दिस्सानायके ने श्रीलंका के सदारती इंतखाब में जीत हासिल की है। ईरान के सूबे खुरासान में कोयले की कान में गैस धमाके में कम से कम 51 अफराद हलाक हो गए। और भारत ने हंगरी में शतरंज ओलंपियाड में सोने के 2 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।